The topic for today is how to trade intraday with a technical indicator called super trend. As you all know, it is visible in front of you that it is very easy to use, and it is clearly mentioned how it will work going ahead. We will take it. Uh, we will try to cover the following topics. Supertrend is an indicator which is developed by Oliver Seben. He was an inventor of this Supertrend indicator. In his early age, to brief him about, in his early age, he made billions of rupees, and at the age of 35, he tend to retire from the working professional. And following other topics which I would like to cover: what is the purpose, means what is the super trend, how it is, how the calculation will be, how we will interpret on the chart, what will be the output, which time frame to be used, uh, the indicator, the chart. We will show some charts, and we'll end the session with the Q&A. So, not wasting much of the time, we'll start with the introduction of an super trend indicator. What is super trend? uh, as it is, as the name suggests, super trend is a trend following indicator, just like other indicators of moving averages and MACD, etc. This is also an indicator which help us to find the buying and selling opportunity in the market, and as the name suggests, it enhance the trend in a superior way. So basically it works well in the trending market. This indicator particularly is much more famous and much more precise in the trending market. It is just because the calculation or the uh, inputs of which the indicator has, it enhances the super trend indicator superior above the other indicators. We'll move with the slide ahead. So the calculation here is the main or the key part, how actually it will work. So super trend indicator has an main calculation called ATR, which is average true range. So as the name suggests, average true range, the average is the combination of few days, few intraday candles, or few intraday or few daily candles, or the whatever parameters we will use. It will be the average and the true range. The true range has a two bifurcation of, namely, period and the multiplier. So we will try to figure out the number of days which we want to calculate in the calculation, and the multipliers by default which is suggested are 2 and 3. So here the Seville Augustine has clearly mentioned while making the indicator that the default parameters he will be using is 10 and 3. So 10 is the period, which is number of days, and 3 is the multiplier. Multiplier is the fixed coefficient. So we can change it to the 2 or 3. So the range for the multiplier is given as 2, which is minimum, and 3 as the maximum. We can definitely change the multiplier, but it will not be so efficient when the multipliers changes on the higher time scale. So here I will try to take it to the spider chart, and we'll see how the indicator is being plotted. First, there is, we move to the study. All must be an professional, and those who are well versed with the spider software, they must be aware of the shortcut keys. There is a shortcut key for studies. Here we will take the super 10 indicator. We will select it out. We will then move to the parameter 3, the factor, which is the multiplier, and the average period, which is the number of days. So by default it is 3 and 10. So 3 is the multiplier and 10 is the average period, and we will plot it on the graph. I'm not doing it because it is already plotted, and once we plot on the chart, it exactly looks like the same which is over here, right? So again to the presentation, this is how the calculation is being built, and why the calculation is built in such a way, we'll take it while during the explanation. कि ये इंडिकेटर जो है
और उसका जो इम्पैक्ट है, जो इंडिकेटर बिल्ड किया है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है. इट कैलकुलेट्स द प्राइस वॉलेटिलिटी. बेसिकली द एवरेज ट्रू रेंज जब मिलता है तो प्राइस वॉलेटिलिटी को कंसिडर करता है, and it gives an significant signal during the ongoing trend of the market. Coming to the next slide, which is how to interpret on chart. As we know that it is an volatile based indicator, and this indicator actually is really very good because it helps us to give the accurate reading about the ongoing trend. It helps us to give a proper time based entry, and the optimization for this is very good in intraday. See how to interpret on the chart. Once we have once we have input the studies on the chart itself, by this kind of formation, it looks like the formation which is being formed over here. And how to interpret, like to an ongoing trend, if the interpretation goes this way: if the line closes below the price bar, then the trend is up, which exactly means that there is a current which is an ongoing trend, which is clearly visible over here. Here the line continuously is above the price bar. As we can clearly see, these are the price bar, which is a candlestick over here, and price, the super trend indicator is clearly above the price bar. And as and when it is approaching slow and steadily on a lower time frame, when there is a contraction happening with the indicator and the price, it tends to give either side signal. First, we'll take up how the buy candlestick why indicator is being formed. If the line is closed below the price bar, then the trend is up. So here we will look at it how it is formed. Here exactly the contraction of the indicator and the price, which is the candlestick, it happens over here, and as soon as the it conflicts with the indicator, that is 10 base 3. As soon as these indicators conflicts with the price, the super trend gives a cut on the downward side, and price tends to inch upward. So this is the first conflict where we will understand that the buy here is happening, which means the buyers are getting a good hands over the bears, and the price action is suggesting that it should be a buy. And then as soon as the price inches upward to a certain point, that's an exit where we will definitely see on the live based example. This is just an image to explain you how the there is a confliction of the indicator and the price, and how the buying or the selling signal are formed. Here if we come again, if the second part of this session, like if the line is closed below the price, then the trend is down. So ये एक बाई का हमने एग्जांपल देख लिया. अब इसी चार्ट पे सेल का एग्जांपल कैसे फॉर्म होता है देखते हैं. सो यहाँ पे जब ट्रेंड चेंज हो रहा है, द प्राइसेस टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड्स. यहाँ पे एक काफी सेशन टाइम के लिए प्राइस साइडवेज हो गया, एंड देन अगेन यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आया होगा, राइट. सो हियर जब ये वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आया और जैसे इंडिकेटर प्रीसीड कर रहा है उसकी गति की ओर, यहाँ पे देयर इज अ सेलिंग विथ वॉल्यूम, and the price breaches the super trend line on the lower side, right. As soon as the price tends to cut the super trend indicator on the lower side, sell signal is generated, and when the sell signal is generated, definitely price tends to move downwards. How far the incremental price movement will move, that is probably will be based on other parameters which we'll look into the live chart. Coming on to the output. So output के इसमें this indicator is basically far more accessible in the trending market. जब वो मार्केट ट्रेंड में होगा, मार्केट की गति की, और ये ट्रेंड जब एक डायरेक्शन में होगा, दिस इंडिकेटर्स वर्क्स वेरी स्मूथली एंड वेरी प्रिसाइजली. जब मार्केट साइडवेज होता है तो as the picture also you can clearly visit, when it's in trending market, the
risk reward ratios are very favorable. The risk is minimal and the component of the rewards are very high. While if it's in the sideways market, we will get in many whipsaws result, which means कि market को पता नहीं है कौन से direction में जाना है. There will be multiple buys and sells in the sideways market, so many whipsaws we will get. जैसे कि ये पिक्चर के अंदर एक डिपिक्शन है, यहाँ पे एक बाई सेल जनरेट हो रहा है, विद इन 2-3 कैंडल्स यहाँ पे सेल वापस जनरेट हो रहा है, वापस 2 कैंडल के बाद बाई जनरेट हो रहा है एंड देन सेल, एंड फॉलोइंग दी साइडवेज मार्केट मल्टीपल बाइज एंड सेल्स आर बीइंग जनरेटेड. तो यहाँ पे क्या होगा कि यू टेंड टू टेक आइदर स्मॉल प्रॉफिट्स और स्मॉल लॉसेस, और यहाँ पे आपके चांसेस है कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होंगे साइडवेज मार्केट में, राइट? तो द मोस्ट एंड दी प्रिसाइज थिंग अबाउट दिस इंडिकेटर इज कि ये जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा इट विल गिव यू गुड कंफर्ट, इट विल बी वेरी प्रिसाइज एंड उसमें विपसॉस कम होंगे, राइट? व्हाई दिस इंडिकेटर वाज इन्वेंटेड, क्योंकि जब आप मूविंग एवरेज के साथ अगर देखते हो तो मूविंग एवरेज भी सेम काम करता है, बट मूविंग एवरेज खाली मूविंग एवरेज जब होती है उसके पास मल्टीप्लायर नहीं होता, तो वो खाली 10 दिन का एवरेज लेता है. सो जब वो 10 दिन का एवरेज लेता है, एज सुन एज दी if it is an intraday तो 10 कैंडल्स का एवरेज लेता है. एग्जांपल, if we plot 10 days, if we plot 21 days as a moving average तो 21 कैंडल का लास्ट एवरेज लेगा. तो विपसॉस जैसे कि वो 21 कैंडल का एवरेज लेगा, इफ एवरेज इज वेरी नियर टू द करंट प्राइस एंड एज सुन एज द प्राइस कॉन्फ्लिक्ट विद द एवरेजेस, तो चांसेस है कि वो स्टॉप लॉस या फिर दी करंट डायरेक्शन को इमीडिएटली चेंज करेगा. सो टू स्मूदन दी मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हैज टेकन प्लेस बिकॉज इट हेल्प्स टू enhance the moving average in terms of multiplier. So number of days is the moving average which remains constant. Here also it is the same input, but what is in addition to it is the multiplier. So जो multiplier है वो coefficient का काम करता है. The coefficient multiplier helps to smoothen the averages and gives you and it lowers down the whipsaws compared to the moving averages. It can be used with the many other combinations like MACD, parabolic SAR, RSI, any other indicators gets mixed well with this super trend. Why it gets mixed well, we will see in the live chart. The best time frame to be used is 15 minutes for an intraday trader. Any time frame below 10 minutes, below 15 minutes, definitely one can use, but results उतने crisp नहीं मिलेंगे. There can be many whipsaws or probably the result है वो multiplier buy sell generate करते रहेगा, because since we are shrinking down the time frame, तो जो आपका पैरामीटर्स है उस टाइम फ्रेम को वो मर्ज भी करता है, तो देयर कैन बी मोर whipsaws. And for semi positional traders, the best time frame is 15 minutes or 60 minutes, and they can stretch maximum up to daily time frame. So this indicator works well in any time frame, in any market, may it be equity, may it be futures, may it be options, may it be currency, may it be forex, any trade. But the time frame and the selection of the indicators are the most and the key part in super trend. So we will take few examples on the live chart. How is it? So आज का दिन जैसे सबको पता है कि वॉलेटाइल था, मॉर्निंग में बिग गैप डाउन एंड देन साइडवेज मार्केट हुआ, एंड देन वी टेंड टू see some price action on the higher side and there was a fall in last second half of the session. तो ये तो है आज का खैर, बट थोड़े एग्जांपल्स लेंगे हम इसके कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है. जैसे अपने बिल्डिंग ऑफ इंडिकेटर देख लिया कि इट इज वेरी सिंपल. यहाँ पे हम थोड़े पैरामीटर्स को ट्वीट करेंगे बाय द पास्ट एक्सपीरियंस. बेसिक पैरामीटर्स है 3 and 10 which is actually plotted on the chart. I will enlarge the chart so that you can see how actually the indicator is plotted. ये इंट्राडे का टाइम फ्रेम है. Since it captures volatility, the most important tool is the volume. जब भी मार्केट में वॉल्यूम्स होगा और वॉल्यूम के साथ इंडिकेटर में बाय या सेल जनरेट होगा, it will give you more enhancement to your trade in a particular direction in which it is generated.
सो ये एक आपके सामने स्क्रीन है। हम पहले इसको डेली स्क्रीन में भी बताते हैं। सी इन डेली बेसिकली इट गोज टू अ पोजिशनल ट्रेड। तो अगर कहीं पे एक पोजीशन यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया ये पार्ट कि whenever the line breaks below the price bar then the trend is up। यहाँ पे भी वही है कि सुपर ट्रेंड जब प्राइस बार सुपर ट्रेंड को कट करता है ट्रेंड बिकम्स पॉजिटिव एंड देन ऑन गोइंग ट्रेंड आपके पास दिख रहा है कंटिन्यूसली कि निफ्टी ने कहीं पे भी उसको ब्रीच नहीं किया है। सो बट सिंस नोबडी कैन होल्ड फॉर सो लॉन्ग ऑफ पीरियड तो उसको हम ट्रेडिंग जोन में, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग इंटीमेशन इंट्राडे में कैसे उसको यूज करें, तो आई वुड लाइक टू शिफ्ट टू द इंट्राडे। तो इंट्राडे में अगर हम देखेंगे तो इंडेक्स में बहुत कम वी यूज दिस इंडिकेटर। इन स्टॉक्स इट वर्क्स वेरी फैंटास्टिक। सो पहला हम एक स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है, एशियन पेंट विच आई हैव आइडेंटिफाइड। एशियन पेंट अगर 2 सितंबर को देखेंगे विच इज डे बिफोर, दिस इज द 2 सितंबर। यहाँ पे उसने एक ट्रेड जनरेट किया था। See, the super trend is moving in his own tandem and prices are fairly doing well। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज प्राइस इज कॉन्फ्लुइजिंग विद द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एंड इट इज कमिंग डाउन। तो यहाँ पे जब एक सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है तो उसके प्रकार क्या होंगे कि हाउ डू वी टेक अ ट्रेड। ठीक है, द मोमेंट द सेल इंडिकेटर इज जनरेटेड ओवर हियर we don't have to take a trade on a particular candle। Let this candle take a formation। on the very next candle if you take a trade, जैसे कि यहाँ पे सेल जनरेट होगा which is in the range of 1960 से लेके 1952, ये प्राइस बार है। तो ये मोमेंट पे आप कहीं पे भी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो एंड आफ्टर टेकिंग एन इनिशिएशन ऑफ ट्रेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्टॉप लॉस। वो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे कि इसका स्टॉप लॉस क्या रखे। सो फॉर प्रो ट्रेडर बेसिकली या एक या दो बार का वो स्टॉप लॉस रख सकता है हाइस का, एंड फॉर सेमी प्रो ट्रेडर्स दोज हु आर नॉट डूइंग इन heaviness in the lot size or maybe in the quantum of the trade, वो एक ट्वीट करके जो जहां से ये सेलिंग चालू हुआ था, ये सेलिंग बार है आपका, तो ये जो हाईएस्ट बार है उसके पहले का उसका आप स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हो। सो यहाँ पे अपने को रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:1 देखना है। whenever we are generating any kind of trade we have to at least try to generate 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे एक ट्रेड जनरेट हो रहा है, उसके बाद आप देखोगे तो फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छा अभी होगा कि इसमें 1:1 तो एक अपने को रेशियो मिल गया कि भाई यहाँ पे ट्रेड जने होने के बाद अगर 20 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 20 रुपए का टारगेट है। बट इन केस रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है अपने को, विच माइट डेफिनेटली हैपन इन दी वॉलेटाइल मार्केट के भाई 1:1 कभी नहीं मिला तो क्या करें। तो उसको एग्जिट करने के लिए वी कैन यूज एनी इंडिकेट सपोर्टिव इंडिकेटर लाइक RSI, MACD, पैराबोलिक SAR, एनीथिंग विच यू आर कंफर्टेबल। अब ये केस में अगर आप RSI देख रहे हो तो यहाँ पे जब सेल इंडिकेटर जनरेट हुआ RSI वाज ऑलरेडी सेइंग हाँ स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, देयर इज अ वीकनेस इन द स्टॉक, और वो वीकनेस कंटिन्यू हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पे। यहाँ पे कॉन्फ्लिज हुआ कि भाई स्टॉक में यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम दिख रहा है, थोड़ा सा बाइंग आ रहा है, तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया हो तो इट इज डेफिनेटली कि यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। या फिर दूसरा एक है कि वो आप जब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जब चेंज होगा वहां पे आप एग्जिट करो। बट इसके अंदर क्या होगा, जब भी आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे एक साइड का ट्रेड लेते हो, एग्जिट के लिए अगर सेकंड पैरामीटर्स या प्राइस एक्शन आप यूज करोगे विच इज far more better and it will be good in terms of risk reward ratio। अगर आप सुपर ट्रेंड this line always acts as an another kind of support or the resistance, whichever direction what we have taken trade उसी direction का support या resistance बनाता है और ये stop loss के तरीके पे यूज होता है। तो सुपर ट्रेंड इज बेसिकली अगर आपका प्री कोई ट्रेड लिया हुआ है तो उसको हम स्टॉप्स एंड रिवर्सल के लिए भी यूज करते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को। बट इसके अंदर क्या होगा, जब वो पोजिशनल होता है तो सुपर ट्रेंड स्टॉप्स एंड रिवर्स में बहुत ज्यादा काम आता है। बट इन इंट्राडे because we want to finish our trade in a shortest span of time and with good risk reward ratio, तो अपने को सेकंड इंडिकेटर का हेल्प लेना ही पड़ेगा। the indicator you can use can be RSI, MACD or parabolic SAR, whichever you are comfortable, and the best indicator is price action if you are able to
understand the patterns of the candlestick, and if you are understand if you have an capability to understand the price action what is going in individual stock or in the market, it will help you and it will be the best reaction to your ongoing trade. तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली देयर इज एन रिवर्सल विच इज ऑब्जर्व्ड हियर। तो आप सेम यहाँ जब अपने को रिवर्सल दिख रहा है तो आप यहाँ पे दिस कैंडल और दिस कैंडल you can exit your trade, still you are in profits, may it be nominal. Intraday में profits are always nominal and even the stop losses are small. So because intraday है तो multiple times you can trade. The stock which you select should be the high beta stock. The criteria for playing with the super trend are basically, I would like to repeat it once again, कि जो सुपर ट्रेंड है वो वॉलेटाइल मार्केट के लिए ही बना हुआ है इंडिकेटर, and it always helps you in the trending market. नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में वो विपसॉस ज्यादा देगा या फिर कंफर्टेबल ट्रेड्स नहीं मिलेगा. आई शो यू द एग्जांपल ऑफ साइडवेज ट्रेड्स आल्सो. एंड द स्टॉक सिलेक्शन शुड बी हाई बीटा और द वॉलेटाइल स्टॉक. अगर स्टॉक सिलेक्शन लो बीटा वाला होगा या लो वॉलेटाइल स्टॉक होगा, देन इंट्राडे में उसको ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, और रादर यू विल एंड अप just for the sake of trading you have done a trade, but you will not end up making no profit no loss, or maybe very nominal profit or a nominal loss or stop loss, whatever you take it into your consideration. So अगर ये है जो मैंने बताया वो पास्ट ट्रेड्स बता रहे हैं, तो विल गो विद द नेक्स्ट ट्रेड विच इज बजाज ऑटो. आई वुड ऑल्सो टेक इट कि वो दो अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे दिख रहे हैं. बजाज ऑटो 31 अगस्त को, आई जस्ट टेक इट ऑन दी इंडिकेटर 10/3 विच इज डिफॉल्ट इंडिकेटर. बजाज ऑटो अगर 31 अगस्त को देखे तो उसने क्लोजिंग में एक बाई ट्रेड जनरेट किया था ऑन वेरी क्लोजिंग बेसिस. तो अभी क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड लेना कि नहीं लेना एक चैलेंज है कि इफ यू आर अ गुड बीटीएसटी ट्रेडर एंड यू हैव अ गुड हैंड्स ओवर बीटीएसटी, डेफिनेटली ट्रेड आप कर सकते हो. बट बीइंग एन नॉट प्रोएक्टिव ट्रेडर, यू शुड ऑलवेज अवॉइड दिस काइंड ऑफ लेट ट्रेड्स, सो दैट क्या है कि सेम ट्रेड अगर कंसिस्टेंसी है ट्रेड के अंदर तो दूसरे दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. फॉर एन एग्जांपल, अगर वो लास्ट मोमेंट पे ट्रेड जनरेट करता और आप नहीं लेते, सो नेक्स्ट डे ओपनिंग में देयर इज स्टिल द इंडिकेटर व्हिच इज शोइंग यू द स्ट्रेंथ. अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो ये हुआ 10/3. बट यही सेम हम इसको डायरेक्शनली थोड़ा ट्वीट कर देते हैं इंडिकेटर को 10/2. यहाँ पे हम जाके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं. फैक्टर्स को हम 2 करेंगे, एवरेज पीरियड 10 ही रख रहे. मल्टीप्लायर जो है हम उसको थोड़ा ट्वीट करते हैं, 3 के बदले 2 ले रहे हैं. तो इसके अंदर क्या रिजल्ट होगा वो हम देखते हैं. 31 अगस्त बजाज ऑटो, ये आपको कैंडल लास्ट 3 कैंडल में, लास्ट 2 के कैंडल में बता रहा है. और ये जो है वो 31 अगस्त को पहले थोड़ा बताएगा. सो बाय ट्वीटिंग दिस वी विल गेट एन अर्ली एंट्री and we will come to know whether the trend is changing or not. अगर ये चीज पे अर्ली एंट्री मिलती है आपको which is this candle, बराबर है, तो आपकी एंट्री लोएस्ट प्राइस पे होगी ऑन द लोएस्ट प्राइस कंसिडरिंग टू द ट्रेंड चेंज. बट अगर 10/3 विच इज डिफॉल्ट इंडिकेटर, वो एक कैंडल आपको बाद में देगा. So the momentum which you are going to gain is in this candle is lost over here. No doubt, the lesser the generation of calls, the higher the success ratio of a trade, बराबर है. But for an intraday player, what matters is the quantum of premature trade और mature trade के difference के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये mature trade है कि premature trade है. सो अगर आज देखते हैं कि देयर वाज एन बिग गैप डाउन होने के बाद क्या हुआ, तो अगर अर्ली मॉर्निंग में गैप डाउन होने के बाद ब्रिटानिया स्टॉक ने इनिशियल फर्स्ट कैंडल में ही बाई दे दिया. तो 2 दिन से देयर वाज एन सेल व्हिच वाज गोइंग इन ब्रिटानिया. इफ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द ट्रेड डे ऑफ 3rd सितंबर, और मॉर्निंग में उसने बाई दिया. सो फॉर अ ट्रेडर अगर वो यहाँ पे बाई जनरेट करता है, राइट, तो अगर हम ये कैंडल पे भी अगर ट्रेड लेते हैं या ये कैंडल खुद पे भी ट्रेड लेंगे,
तो हम स्टॉप लॉस उसका 1% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, सिंस इट इज अ मॉर्निंग ट्रेड और प्रीवियस कैंडल का सपोर्ट अपने पास कहीं पे भी नहीं है, राइट। तो हमको स्टॉप लॉस अपने हिसाब से इसमें चूज करना होगा, बट व्हाट विल हैपन कि वो विप्सॉस विल कंटिन्यू सिंस वी आर गोइंग ऑन अ डाउनवर्ड टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखेगा कि ये देखो 3/10 में एक बार बाई जनरेट होने के बाद देयर इज अ साइडवेज मोमेंटम, बराबर है। पर यहाँ पे अगर 2/10 है, अगर हमने यहाँ पे लिया दिस कैंडल पे, बराबर, अगर साइडवेज मोमेंटम होने वाला है तो ये इंडिकेटर अपने को बता देगा कि भाई मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, दो मैंने यहाँ पे बाई जनरेट किया बट मेरा बाई सस्टेन नहीं हो रहा है। व्हाई? बिकॉज वॉल्यूम्स मे गेटिंग ड्राई अप या फिर कोई अदर पैरामीटर्स आर गेटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद दी करंट सिनेरियो, एंड यहाँ पे वो आपको बता देगा कि भाई मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, आप मुझे एग्जिट कर लो। सो अगर आपकी एंट्री ये कैंडल पे भी है और ये कैंडल का अगर आप एग्जिट यूज करते हो, स्टिल यू आर गेटिंग समवट और यू आर एग्जिटिंग एट पार। सेकेंड इंडिकेटर है कि आपका जो आरएसआई है वो भी यहाँ पे थक गया है, वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि भाई भले मैंने प्रीवियस डे से ओपनिंग में बाई जनरेट किया बट आई एम टायर्ड ओवर हियर एंड आई डोंट हैव फर्दर मोर स्ट्रेंथ टू सस्टेन बाइस। तो यहाँ पे bears are getting over a bulls which is clearly visible. Even post that आप देखोगे तो volumes started drying up and then trade never gave buy। तो ये अगर ये आप इसी 10/3 के पैरामीटर्स पे अगर होल्ड कर रहे हो तो यू कैन सी कि आपको एग्जिट इसमें कितना लेट मिल रहा है, दो देर इज नॉट मच डिफरेंस, बराबर है। बट अगर आप देखोगे कि इसका एग्जिट आपको 37-87 के आजू बाजू मिल रहा है, सो कंसिडर 37-85 एज अ राउंड फिगर, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसका एग्जिट आपको मिल रहा है 37-45 या 37-55 के रेट पे। तो देर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे वो बता रहा है साइडवेज है, हाँ ऐसा हालांकि हो सकता है कि साइडवेज होने के बाद अगर मार्केट में अगर बाइंग आता तो ये जो आपका ट्रेड है वो डेफिनेटली कुछ अलग जोन पे होता, बट देन आपको अगर अर्ली एग्जिट यहाँ पे मिल गया है तो ये आपको सिग्नल पहले ही कर देगा कि भाई वापस ये स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है। सो टू अंडरस्टैंड कि भाई एक ही स्टॉक में स्ट्रेंथ कैसे आएगा या कैसे नहीं आएगा, वी कैन मूव टू दी अनदर स्टॉक, मारुति। अगर आप मारुति देखोगे तो सेम है कि कल के उसमें बाइंग सपोर्ट कंटिन्यू था, ये स्टॉक 2 दिन से बाई में चल रहा था। जैसे आप मार्केट गैप डाउन हुआ देयर वाज अ प्राइस गैप डाउन, ठीक है, बट जैसे प्राइस गैप डाउन हुआ फर्स्ट कैंडल पे, देन इट इनिशियली जनरेटेड बाई एट द लोअर लेवल्स व्हिच वाज अराउंड 7050। तो अगर आप देखोगे कि ये कैंडल का अगर आप बाई, हाँ, सो कमिंग टू दिस बिफोर गोइंग अहेड विद दिस, अगर 10/3 में देखोगे तो ये विप्सॉस अपने को नहीं मिला, तो आपका अगर पोजिशनल ट्रेड है तो 10/3 आपको इंडिकेट करेगा कि भाई ठीक है प्राइस नीचे है बट देयर इज नथिंग टू वरी, इट आइडियली विल बाउंस बैक, ठीक है। बट आपके ये केस में अगर आपका पास प्री ट्रेड नहीं है एंड इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, ऑब्वियसली आप सुबह में ही अ न्यू डे अ न्यू ट्रेड उस इंटेंशन से हम जैसे चलते तो यहाँ पे क्लियर कट बाय एक इंडिकेट होगा, एंड देन अगर आप देखोगे तो देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ रैली। अगर ये कैंडल पे बाई जनरेट होता है तो आपका ये कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, तो अगर ये कैंडल का स्टॉप लॉस है वो 7000 के 6980 के आजू बाजू है, अरे आपका बाई है 7040 है 50 पे, सो समवॉट 60-70 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो यू विल एम एटलीस्ट 70 रुपीज टू गेन टू मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:1। तो आप इजीली देखो यू आर गेटिंग मोर देन इट, ठीक है। सो अभी इसका एग्जिट कैसे करेंगे, आइदर यू यूज आरएसआई इन इंट्राडे टू गेट एन एग्जिट, वो आपको यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि भाई मेरी जो रैली थी वो यहाँ पे खत्म हो रही है, आई एम गेटिंग टायर्ड ओवर हियर, एंड इफ यू कैन सी द कैंडल, यहाँ ये जो पावर कैंडल था विद वॉल्यूम्स, बराबर है। फिर नेक्स्ट कैंडल में देखो द कैंडल्स आर ग्रीन, देयर इज एन अप मूवमेंट, वॉल्यूम्स आर गेटिंग लोअर और ड्राइड अप, एंड देन इवेंचुअली द स्टॉक इज गेटिंग साइडवेज एंड हियर देयर इज एन कट डाउन। तो ये जो पॉइंट है आपका जो इन्फ्लेशन पॉइंट, ये जो that is a time to book profits if you have taken at a lower level. Secondary, if you are already holding it up and then, तो ये भी एक एग्जिट का इंडिकेशन आपको बताएगा। सेकेंडली अगर वही चीज हम 10/3 इंडिकेटर में देखते हैं तो उसमें जो एग्जिट आएगी दैट विल बी वेरी लेट। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए 10/2 हमने ट्वीट इसके लिए किया, और ये डिफरेंस हम आपको इसके लिए बता रहे हैं कि फॉर इंट्राडे ट्रेडर वी नीड क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, बट इट शुड बी प्रिसाइज एंड गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली इसके अंदर अच्छा है 10/3 में, राइट, बट एंट्री एग्जिट इज द की क्राइटेरिया फॉर अ ट्रेडर। तो वो एंट्री एग्जिट इसके अंदर
अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट के लिए 10/2 पैरामीटर्स जो हमने ट्वीट किया है वो विच इज मच यूजफुल एज कम्पेयर टू 10/3. इट इज ऑल्सो बैक टेस्टेड एंड वी आर सजेस्टिंग इट कि भाई 10/2 आप अगर यूज करोगे तो आपको एंट्री एग्जिट बहुत अच्छा मिलेगा. सेकेंड, ये तो हो गई आपकी मॉर्निंग कैंडल के बाद. अगर हम थोड़ा अगर आगे जाते हैं 10 बजे के और आज का ही ट्रेड, तो एक टाटा कंज्यूमर है, राइट. टाटा कंज्यूमर में भी देखो देयर वाज एन बाई विच वाज जनरेटेड एट 10 PM. एक हल्का सा स्विफ्ट आया. इफ यू नो कि डेली ट्रेंड ऑफ टाटा कंज्यूमर इज पॉजिटिव, which we all know कि वो इतने दिन से पॉजिटिव चल रहा है, एंड इवन इफ यू सी दी डेली RSI इट इज इन दी ओवरबॉट जोन. और अगर किसी को डाइवर्जेंस समझ में आता हो तो देयर इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि भाई RSI क्लियर कट बता रहा है कि भाई मैं थक गया हूं, भले स्टॉक में पॉसिबल अपमूव आ रही है बट अपसाइड्स आर गेटिंग कैप्ड, और मे बी अपसाइड जो है वो टेम्पररी कैप्ट हो रही है, लिमिटेड अपसाइड लग रहा है. सो आइदर स्टॉक हैज टू करेक्ट प्राइस, स्टॉक हैज टू गिव प्राइस करेक्शन और हैज डेफिनेटली हैज टू गिव टाइम करेक्शन. तो ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट है. आगे ये स्टॉक में क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट स्टिल टू प्रेडिक्ट, बट एज पर दी सेटअप अभी लग रहा है कि प्राइस करेक्शन आ सकता है ये स्टॉक के अंदर. बट सिंस द मेजर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज पॉजिटिव, अगर आप इसको शॉर्ट करो तो इंट्राडे में शॉर्ट करें और बने तब तक क्विक एंट्री क्विक एग्जिट कर ले. तो यही स्टॉक अगर यहाँ पे बाय बता रहा है, बट इनिशियली बाय देने के बाद तुरंत ही वॉल्यूम्स ड्राई हो गया और स्टॉक साइडवेज हो गया. हाँ, एक चीज है कि मार्केट इसी जोन पे नॉन ट्रेंडी था. अगर ये टाइम देखे 11 से लेकर 12 बजे 12:30 के बजे, तो इंडेक्स जो था आपका वो नॉन ट्रेंडी था, वो भी पूरा साइडवेज था. तो ये इंडिकेटर काम नहीं करेगा. बाई देने के बाद भी आपको इतना उसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं होगा, या इसका जो ट्रेड का एक्सीलेंसी है वो फैच नहीं होगा. क्या वॉल्यूम्स नहीं है. यही चीज 10 के 11 के बीच में काफी सारे स्टॉक्स है जिसने परफॉर्म भी किया है, बट उसने क्यों परफॉर्म किया है वो नेक्स्ट आप स्टॉक के अंदर देख सकते हैं. जी सिंडाल्को मेटल सेक्टर है. मेटल ओवरऑल सेक्टर्स में देयर इज अ गुड स्ट्रेंथ विच इज गोइंग ऑन. अगर आप मेटल इंडेक्स ट्रैक करते हो तो मेटल इंडेक्स इज आल्सो पॉजिटिव. कल का प्रेशर या साइडवेज मूवमेंट ऑफ हिंडाल्को के बाद आज उसने एक यहाँ पे ट्रेड जनरेट किया बाई, और बाई के बाद उसने कांस्टेंट फॉलोअप दिया अपने को कि भाई हाँ मेरे में स्ट्रेंथ है एंड आई एम गोइंग अपवर्ड्स. तो ये बाई उसने दिया है आपको करीब करीब 187 का लो है, तो 187 पे तो नहीं मिलेगा. डेफिनेटली 188 188.50 के रेंज में अगर आपको बाई भी मिलता है तो प्रीवियस कैंडल या उसके प्रीवियस कैंडल, द वे यू आर कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट साइज ऑफ रिस्क, यू हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस. तो अगर यहाँ पे 2 रुपए या 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, सो वी विल डेफिनेटली एम एट 3 रुपीज ऑन दी अपसाइड और मोर देन दैट. तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल बाय होने के बाद, साइडवेज मूवमेंट होने के बाद देयर इज एन अपटिक, और ये अपटिक आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भाई प्राइस एक्शंस आर गोइंग गुड. वॉल्यूम्स भी है, वॉल्यूम्स ड्राई नहीं हुए. अगर सेम स्टॉक आपने देखे थे इसके पहले वाले में तो वॉल्यूम्स वे ड्राई एंड हेंस इट डिडंट परफॉर्म. ये केस में वॉल्यूम्स है, राइट. तो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं कि भाई नॉट ड्राइंग अप एंड हेंस देयर इज अ मोमेंटम इन द स्टॉक. तो आपको तो आपका इंट्राडे ट्रेड करना है. यहाँ पे बाई किया, यू आर गेटिंग योर इनफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. और जैसे ही आप अगर प्राइस एक्शन देखो साइडवेज हो रहा है, साइडवेज हो रहा है तो आप एग्जिट ले लो. सेकेंडली, अगर प्राइस एक्शन से नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे आपका RSI देखो कंटिन्यूसली साइडवेज हो गया, वॉल्यूम्स आर गेटिंग ड्राई अप, सो विच मींस इट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट. और अगर कभी कभी ऐसा ट्रेड होगा कि भाई आपने एंट्री किया और साइडवेज हो गया, देन ऑल्सो यू कैन टेक एन एग्जिट, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंडिकेटर इज के वो ट्रेंडी होना चाहिए. ट्रेंडी नहीं होता है, जैसे वो ट्रेंड ड्राई अप होता है, यू टेक एन एग्जिट, योर एग्जिट विल बी as good as near to your cost or just minor below your cost. So next trade अगर देखते हैं PVR. देखो PVR ने अर्ली मॉर्निंग में 10/2 में अर्ली इंडिकेशन पे बाई दे दिया 10 बजे. जब ये 10/3 अगर देखते हैं तो उसमें जो इंडिकेशन आया है वो 11:15. सो देयर इज अ वास्ट टाइम डिफरेंस. तो अगर अर्ली ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडर है उसको ये बार पे अगर कहीं पे बाय मिल जाता है, राइट, तो ही हैज एन एम्पल ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेड. एंड अगर जब भी स्पाइक आएगा ही विल बी अर्ली, सिंस द एंट्री विल बी अर्ली, द रिवॉर्ड्स विल बी गुड इन टर्म्स ऑफ एग्जिट. अगर जब करेंगे तो रिवॉर्ड उसका ज्यादा बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग ओवर हियर.
तो ये सिंपल ट्रेड ये अभी तक जो देखे हमने बाई ट्रेड देखे, सिंस मार्केट वाज मार्केट एड ओपन गैप डाउन एंड देन उसने थोड़ा सा अपने को बताया कि भाई आई एम गेनिंग स्ट्रेंथ, बट इट एक्चुअली डिडंट हैपन एट द एंड ऑफ द सेशन। हम देखते हैं एक ट्रेड और बाटा का। अगर बाटा देखेंगे तो उसने भी सेम किया है कि भाई लास्ट 3-4 दिन से डेली में तो वो कंटिन्यू स्ट्रेंथ बता ही रहा है। वॉल्यूम्स आर आल्सो गुड इन डेली। तो हम उसको अगर डेली में देखते हैं कि भाई ट्रेंड अच्छा है, तो हम इंट्राडे में उसको कहाँ पे ट्रेड करेंगे, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहां पे। सो वेन एवर आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, पास्ट 2 दिन से बाटा वाज डूइंग गुड। आज गैप डाउन होने के बाद उसने थोड़ा साइडवेज या स्लगिशनेस बताया, वॉल्यूम्स नहीं थे। आरएसआई वाज आल्सो ओके बिकॉज लास्ट इन यस्टरडेज ट्रेडिंग सेशन आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका था। तो डेफिनेटली इसमें इसको प्राइस करेक्शन नहीं बोलेंगे, बट इसको साइडवेज या टाइम करेक्शन बोल सकते हैं हम इसको। एंड देन व्हेनेवर द वॉल्यूम स्टार्टेड पिकिंग अप, और जब स्टॉक का स्ट्रेंथ वापस गेन होने लगा, it indicated a buy to us. Here the buy was generated, and then we saw a rally and then again a sideways. तो अगर यहाँ पे अगर हम बाई चांस बाई करते हैं, तो यहाँ पे either you will have to take a exit और पूरा साइडवेज चला जाएगा। तो जब RSI आपको एग्जिट बताएगा तब आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, विच इज ओवर हियर। स्टिल यू आर एट नो गेन नो लॉस, मतलब आप एट पार ही हो। ये कैंडल पे बाई करने के बाद जब ये कैंडल पे एग्जिट आता है तो यू आर स्टिल एट पार और एट अ नॉमिनल कॉस्ट बिलो योर कॉस्ट। तो जो प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट है, दोज हु कैन अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन ऑन कैंडलस्टिक, दे कैन टेक अर्ली एंट्री एंड अर्ली एग्जिट। स्टिल अगर यहाँ पे देखोगे देयर इज अ डिफरेंस वेर, अगर यहाँ पे अगर आपने बाई भी किया है 1370 में, स्टिल यू आर गेटिंग 20 ऑड रुपीज। चलो टॉप नहीं मिले तो 15 रुपया तो मिले ही मिले। सो द मेन मोटो फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज, there are a few things which I wanted to, even if you want you can write it down, कि एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई हमेशा सही नहीं होता, नो वन ऑलवेज गोज राइट। बराबर, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड एक्सेप्ट इज एट अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग। आपने जैसे अगर स्टॉप लॉस को समझ लिया, तो वो स्टॉप लॉस क्यों हुआ पहले उसको आइडेंटिफाई करिए, देन उसको रेक्टिफाई करिए। तो द सक्सेस ऑफ योर ट्रेड विल फाइन ट्यून। तो आप अपने सक्सेस ट्रेड को फाइन ट्यून करोगे उसमें, एंड यू विल एनहांस टू गेट मोर सक्सेस रेशियो ओवर द फेलियर रेशियो। ठीक है, सक्सेस रेशियो जैसे सबको पता है कि इट कैन नेवर बी 100%। कोई अगर क्लेम भी कर देता है कि मेरा सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा या अच्छा है या 100% है, विच इज प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई 100% राइट हो। सो एक्सेप्ट द ट्रूथ दैट सक्सेस रेशियो कैन नेवर बी 100%। ठीक है, वेदर रॉन्ग एंट्री कभी हो जाती है, बिकॉज हमें नहीं पता विद द फ्लो हम कोई एंट्री स्टॉक्स में ले लेते हैं जो हाई बीटा नहीं है या लेस वॉल्यूम स्टॉक्स है। तो हमेशा उसके एग्जिट पे आप पहले ध्यान दीजिए, ना कि वो ट्रेड के अंदर आप हमेशा ट्राई करें या फाइंड करना ट्राई करें कि भाई ये ट्रेड मेरा सक्सेस कैसे हो। अगर आपका रॉन्ग ट्रेड हुआ है या रॉन्ग एंट्री ट्रेड हुआ है, द ट्रेड इज नॉट रॉन्ग, इफ द एंट्री इज रॉन्ग, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको नियरेस्ट प्राइस या नियरेस्ट कॉस्ट पे या नॉमिनल गेन्स पे कैसे उसको एग्जिट मिले, rather than to find that trade can be into the favor of a success। फर्स्ट, अब जहां पे प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते रहिए, नेवर बी वेरी ग्रीडी फॉर प्रॉफिट। और जब स्टॉप लॉस भी होता है तो बिंदास स्टॉप लॉस कीजिए। स्टॉप लॉस करने से क्या होगा, आपकी कैपिटल बचेगी, और अगर कैपिटल बचेगी तो नेक्स्ट ट्रेड में स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। अगर स्टॉप लॉस नहीं किया एंड if that particular stock or index what you have traded goes well below your cost, साइजेबल नीचे जाता है, देन यू विल एंड अप होल्डिंग इट एज अ डिलीवरी, और ट्रेडर से आप फिर वो फोर्सफुल इन्वेस्टर बन जाओगे। सो व्हेन अ ट्रेडर, बी अ ट्रेडर एंड ऑलवेज बी अ ट्रेडर टू, एंड ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, द सबसे बेस्ट थिंग टेक्निकल में है, नेवर try to find top and bottoms. Instead of finding top and bottom, try to find the reversal trades, focus on the reversal trades। कि भाई आपको पर्टिकुलर एक ऑनगोइंग ट्रेंड है, तो वो ट्रेंड के अंदर आपको उसका रिवर्सल कहां से मिलेगा, हाउ कैन यू फाइंड अ रिवर्सल इन अ ट्रेड एंड यू कैन एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेड टू गेन वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर योर इंट्राडे सम ऑफ प्रॉफिट। जैसे मार्केट साइडवेज के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद लैकलस्टर होने लगा। अगर आप एक ट्रेड देखोगे SRF, उसने भले मार्केट ट्रेंडी था
तो भी उसने 12 बजे यहाँ पे अपने को क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया कि भाई यहाँ पे मैं साइडवेज हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी सेल था, हल्का सा बाई येस्टरडे आया विच फाइनली गॉट इरोडेड टुडे। अगर किसी ने कल बाई भी किया हो साइडवेज होने के बाद, आज उसको अच्छा एग्जिट भी मिला था। अगर आप देखोगे ये कैंडल पे देयर वाज एन एग्जिट, और यहाँ पे तो ये कैंडल पे नहीं समझ में आया, ये कैंडल रिवर्सल कैंडल है दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं समझ में आया, तो ये कैंडल भी है अनदर। स्टिल यू आर इन अ गुड अमाउंट ऑफ कंपैरिजन रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे अगर आपकी एंट्री है तो यहाँ पे एग्जिट तो आपको लेनी ही है, because the trend is changing, volumes are getting dry again। तो यहाँ पे अगर प्रीवियस डे ट्रेड कोई नहीं करता, खाली इंट्राडे टू इंट्राडे करता है, तो देयर इज एन हियर दिस वाज द बेस्ट सेल सिग्नल इन एसआरएफ टुडे कि ये लेवल पे उसने सेल दिया। ये कैंडल आपकी जो कैंडल है वो पर्टिकुलर सेल कैंडल होगी। उसके बाद अगर आप देखो वॉल्यूम ड्राई हो गया, बट स्टॉक ने कहीं पे भी उसका जो सेल वाला पार्ट था उसका मोमेंटम कहीं पे भी लूज नहीं किया। देयर इज एन सपोर्टिव टूल आरएसआई आल्सो कि भाई उसने भी कहीं पे फ्लिप नहीं दिया कि भाई आई एम गेनिंग स्ट्रेंथ, आई एम गेनिंग स्ट्रेंथ, एंड देन व्हेन एक्चुअली मार्केट फॉल द स्टॉक गिव यू फैंटास्टिक रिटर्न। तो अगर ऐसा एक या दो ट्रेड भी आपको इंट्राडे में मिल गया, द डे इज योर्स, कंप्लीटली योर्स, एंड यू फुलफिल योर ऑल विशेष। अगर ये 4% आपको मिलता है, 3 से 4%, आज मोमेंटम में पूरा दिन अगर देखोगे तो स्टॉक ने काफी अच्छा मौका दिया सबको एंट्री एग्जिट करने के लिए इसके अंदर। कमिंग ऑन टू अनदर ट्रेड, अ काइंड ऑफ विपसॉ ट्रेड, और बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बेस्ड नहीं था, फिर भी इसने इंडिकेट किया, और अगर हमने ट्रेड लिया है तो हमको उसको में क्या करना चाहिए। टाइटन एज वी ऑल नो डेली ट्रेंड सुपर पॉजिटिव, यहाँ पे कहीं पे उसने विपसॉस दिए नहीं है। वॉल्यूम्स येस्टरडे वेर वेरी गुड, आज वॉल्यूम्स वेर ड्राई कंपेयर टू येस्टरडे। यहाँ पे उसने अच्छा कल कैंडल दिया था। अगर आप डेली कैंडल फॉलो करोगे तो दिस इज अ कैंडल जहाँ पे उसने बोला कि ऊपर जाके उसने प्राइस एक्शन छोड़ दिया डेली कैंडल पे। दिस कैंडल इज फॉर्म आफ्टर द एंड ऑफ द डे, बट अगर आप कंटिन्यूस लाइव मार्केट वॉच करोगे तो ये कैंडल आपको प्री फॉर्मेशन दिखेगा ये कैंडल का। तो उसका इंट्राडे हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे क्लियर कट सेल सिग्नल था ऑलरेडी, बट यहाँ पे एक हल्का सा विपसॉस दिया। अगर ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ और आपने बाई भी किया है, बराबर है, साइडवेज जाने के बाद आपको पता है कि भाई देयर इज नो ट्रेंड, ये गलती वाला सौदा है मेरा, ये रॉन्ग एंट्री ट्रेड है मेरा, तो मैं क्या करूँ। रॉन्ग एंट्री ट्रेड है तो भाई कोई भी कैंडल पे आप एग्जिट ले लो, आपकी कॉस्ट के नजदीक ही होगा, डेफिनेटली योर एग्जिट विल बी बिलो योर एंट्री कॉस्ट, क्योंकि ये कैंडल की जो साइज है उसकी जो बीच में अगर आपका एवरेज बाई भी हुआ होगा तो इट विल बी समवेयर अराउंड 1175 1178 या 1180 जोन भी पकड़ लो लेट एंट्री वाले, तो आपका एग्जिट होगा 1175 के करीब करीब ही होगा, तो आपको नेट नेट ₹5 ही। सो रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल इन केस ऑफ रॉन्ग ट्रेड्स ऑल्सो। सेकेंडली ये ट्रेड लेने के वक्त यहाँ पे तुम्हारा आरएसआई ऊपर था नो डाउट, बट इट वाज शोइंग यू सम साइक ऑफ स्लगिशनेस, और उसने नेक्स्ट इमीडिएटली जैसे ये साइडवेज गया इंडिकेट कर दिया देयर इज नो स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे बेस्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट ये आपको बता देगा। अगर सेम ट्रेड 10/3 में करते हो तो देखो आपको कितना लेट एग्जिट मिल सकता है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप जब भी ट्रेंड सुपर ट्रेंड सिलेक्ट करते हो, विच टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग इट, विच पैरामीटर्स यू आर यूजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे टाइम फ्रेम की बात आती है तो लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। डॉक्टर रेड्डी का देखेंगे जो अपने को 1 सितंबर को एक ट्रेड जनरेट करा था उसने। दिस इज 1 सितंबर, राइट। यार पे हम थोड़ा सिंक कर देते हैं इसको ताकि यू कैन सी इट वेरी इजीली। यहाँ पे उसने बाई ट्रेड जनरेट करा था, 10/3 ने बाई ट्रेड जनरेट किया लगभग आपके करीब के 2 बजे। जब वो 10/2 है तो अर्ली इंडिकेशन में यहाँ पे उसने बाई ट्रेड जनरेट किया था। दिस इज दी 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। ये टाइम फ्रेम जनरेट यहाँ पे उसने जनरेट किया, तो आपका ये जो कैंडल है उसमें जनरेट किया, ये कैंडल का लो या ये जो साइडवेज मोमेंटम है, ये कोई भी कैंडल का लो एज अ स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर सकते हो। And when the trend is preceding, you should keep your trailing stop loss as and when there is a trend preceding in your favorable trend। तो जैसे जैसे ये प्राइस इंचेस अपवर्ड हो रही है, कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस टू योर प्रीवियस कैंडल, या फिर ये जो बेस है सुपर ट्रेंड का आप उसको स्टॉप लॉस में ट्रेल करते जाइए। सो ये सेमी पोजिशनल के लिए जैसे हमने बताया थी, इंट्रा डे टू 2 डेज के लिए, दैट इज फ्रॉम 15 मिनट्स टू 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सेमी पोजिशनल ट्रेडर भी ट्रेड कर सकता है।
there is a scope for positional trader also to trade even on the intraday semi time frame basis. तो बट ये चीज मैं आपको यहाँ पे टाइम डिफरेंस कैसे बताऊंगा, इसको हम 60 मिनट्स में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हम इधर 15 मिनट्स रहते थे, इसको हम 60 मिनट्स पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 मिनट्स पे अभी जब आप देखोगे तो ये फर्स्ट सेमी पोजिशनल ट्रेडर के लिए जो 60 मिनट्स या 30 मिनट्स यूज करते हैं, उनके लिए बाई यहाँ पे लेट बाई सिग्नल जनरेट होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज हो गया। टाइम पैरामीटर्स भले वही है, तो पैरामीटर्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। जो अगर 10 कैंडल का एवरेज लेना है तो 60 मिनट्स की एक कैंडल इंटू 10 कैंडल का वो एवरेज लेगा। जब आप यहाँ पे 15 मिनट्स यूज करते हो तो 15 मिनट्स की हर कैंडल का जो एवरेज है उसको कैलकुलेट करेगा। सो देयर विल बी अ डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस विल रिफ्लेक्ट इनटू द लेट बाइंग सिग्नल। सेम वे सेलिंग भी लेट आएगा, तो कभी ऐसा होता है कि यू गेट अ गुड रन अप इन अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड यू टेंड टू मेक more than expected handsome returns on a particular stock। तो अगर 60 मिनट्स में यहाँ पे बाय है, फिर भी आपको सेमी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए डबल कंफर्मेशन है कि भाई 15 मिनट्स में बाय, 60 मिनट्स पे भी सेकंड टाइम बाय आ रहा है। यू कैन एड अप योर पोजीशन विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ योर प्रीवियस कैंडल एंड यू कैन राइड द रैली। अच्छा, ये सब और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो और एक हम चीज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो नॉर्मली कंफर्टेबल सबके लिए नहीं होगा। हम स्विंग ट्रेडिंग, जिसको पता हो तो स्विंग्स हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम स्विंग ऐड करते हैं, उसका रिवर्सल परसेंटेज हम रखेंगे 1%। वाई 1%? क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, अपने को इंट्राडे में एंट्री एग्जिट चाहिए। जो सेमी पोजिशनल है उन लोग 3% रखते हो। 3% द ट्रेंड, the swing will be very huge, and the price between the 1% and 3% swing will be way different। तो अगर 1% का हम स्विंग अगर ले भी लेते हैं, तो जैसे अगर पर्टिकुलर डॉक्टर रेड्डी का ही देख लेते हैं आज का ट्रेड। जैसे सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट किया दोपहर के 12 बजे, बराबर। दोपहर के 12 बजे उसने ट्रेड जनरेट करने के बाद अगर आप पर्टिकुलर स्विंग का जैसे सिस्टम है, स्टॉप लॉस रख दो, ट्रेलिंग कर दो स्टॉप लॉस, यहाँ पे ट्राई किया ट्रेंड को वायलेट करने के लिए। वॉल्यूम्स भी जनरेट बताया कि भाई आपने जो ट्रेड लिया वो आपको डरा रहा है यहाँ पे, बट स्टिल देर आर साइडवेज, मतलब क्लियर कट है कि भाई हाँ ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, एंड देन ट्रेंड इज नॉट चेंजिंग। वो आपको सपोर्टिव टूल स्विंग ट्रेड देगा कि भाई यहाँ पे जब टॉप जनरेट कर दिया है, आपको कंफर्मेशन यहाँ पे सेल का मिल रहा है, स्विंग खत्म नहीं हुई है, तो स्विंग को कहीं ना कहीं तो खत्म करनी ही पड़ेगी, तब जाके द अनदर सेट ऑफ स्विंग विल स्टार्ट। जब ये यहाँ पे अप स्विंग था, जैसे ये डाउन स्विंग है, तो अगर आप 11-12 बजे देखोगे तो स्विंग विल बी हाफ, तभी स्विंग पूरी खत्म नहीं हुई, तो ये स्विंग बनी नहीं होगी। तो यू गेट एन अनदर एडेड सपोर्टिव एडवांटेज कि भाई नहीं, अभी भी ट्रेड बन रहा है, बना हुआ है। अगर ये ट्रेड यहाँ पे अगर रिवर्सल होता, तो ये जो स्विंग यहाँ पे है वो यहाँ पे बन जाती ऑलरेडी। तो ये बन जाती तो आपको पता चल जाता कि भाई देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये स्विंग ने लो बनाया, लो जैसे बनाया स्पाइक अप आ गया, तो ये लो जो है वो स्विंग बन गई। तो यहाँ पे अपने को इंडिकेशन मिल गया कि भाई जो इंट्राडे ट्रेडर है उसको एक बार एग्जिट मिल रहा है, ले लीजिए इसको क्रेडिट, भले आपको जो भी रिस्क रिवॉर्ड हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली फेवरेबल ही है ये ट्रेड में भी। तो यहाँ पे अगर एग्जिट लोगे तो फिर दो सिंगल ट्रेड्स है जो साइडवेज है, 2 कैंडल्स, तो आपको एक अच्छी एग्जिट मिल जाएगी, क्योंकि एंट्री तो आपको मिल गई सुपर ट्रेंड से। तो एग्जिट के लिए भी आप क्या ढूंढोगे? अगर आप जैसे हमने प्रीवियसली सब स्टॉक्स में डिस्कस किया, पहले जब भी स्विंग नहीं थी तभी, कि भाई हम आरएसआई को यूज करेंगे एज एन एग्जिट, बराबर है। अब आरएसआई तो यहाँ पे फ्लैट हो गया, नीचे के साइड ट्रेंडिंग थी, आरएसआई फ्लैट हो गई, नो डाउट अबाउट इट, बट वो बाई आपको या आपका ट्रेड का एग्जिट कब देगा? जब ये दोनों के बीच का डिफरेंस, आरएसआई का जो डिफरेंस है वो कम होगा, तब जाके उसको एग्जिट मिलेगी। तो प्रोबेबली your trade exit will be little at higher rate comparative to the swing। तो ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें दोनों को, तो स्विंग ट्रेड अगर किसी को जमता हो तो डेफिनेटली दे कैन मेक अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट along with the super trend which will give you good entry and exit। सेम वे टॉप पे भी जहाँ पे अगर ये यहाँ पे अगर सुपर ट्रेंड का बाई कंटिन्यूस चल रहा है, तो एट टॉप ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू एग्जिट द ट्रेड। बट स्विंग ट्रेड को आपको ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड पर डबल शॉट कर देना है, आपका प्री एग्जिस्टिंग जो ट्रेड है उसको कहाँ पे एग्जिट करना है, उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग यूज करना है,
ना कि स्विंग ट्रेडिंग को डबल, क्योंकि ये कैसा है कि यहाँ पे आपको एग्जिट मिला, 2 कैंडल साइडवेज जाएंगे, थर्ड कैंडल अगर सपोज ये हाई को क्रॉस कर देता है तो ये स्विंग कैन गेट एक्सटेंडेड, राइट। तो इन दैट केस आपको ये अर्ली एग्जिट के लिए आइडेंटिफिकेशन हेल्प करेगा स्विंग ट्रेडिंग कंपेयर टू दी, क्योंकि ऑलरेडी आपको एंट्री अच्छे भाव पे मिले तो एग्जिट के लिए ही यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि स्विंग बन गया तो हमेशा ये एग्जिट पे आप डबल शॉट कर दो, या अगर आप करते भी हो तो ये स्विंग का हाई आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में अगर स्ट्रेंथ होगा, ट्रेंडिंग मार्केट होगा, तो 2-3 साइडवेज कैंडल बन सकती है, देयर कैन बी 2-3 साइडवेज कैंडल्स, बट एज सुन एज दी trend reverses, the trend reversal will be very fast and you might even not get time to exit अगर प्री स्टॉप लॉस नहीं डाला होगा सिस्टम में तो, राइट। सो मोर ओवर आई ब्रीफ इट अप अगेन कि सुपर ट्रेंड का एग्जैक्टली काम क्या है। टू अवॉइड दी whipsaws, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वाज डेवलप्ड, इट ऑलवेज वर्क्स इन दी ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट पे आपको हमेशा ही वो आपको whipsaws देते रहेगा, या फिर आपका मूवमेंट जो है वो हमेशा बाई सेल करते रहेगा मल्टीपल टाइम्स, there will be entry and exit which is not good for any positional even trader या intraday trader। अगर हम देखें साइडवेज मार्केट के लिए तो आई जस्ट रिमूव द स्विंग सो दैट इट इज इजी टू आइडेंटिफाई नाउ। ये देखो साइडवेज मार्केट में यहाँ पे वो सेल देगा, साइडवेज कैंडल हो गया, यहाँ पे उसने बाई दे दिया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे सेल दे दिया, वापस वो यहाँ पे हल्का सा ऊपर जाएगा तो बाई देगा, तो 3 रुपए के रेंज में उसने कम से कम 3 बार बाई या सेल दे दिया। सो एक्चुअली दैट इज नॉट अवर क्राइटेरिया टू वर्क। सो द स्टॉक सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और स्टॉक सिलेक्शन का अगर पहले आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप प्लॉट कीजिए स्टॉक्स, ये सुपर ट्रेंड इसके ऊपर, इसकी क्वेरीज भी है, तो क्वेरी अगर हम इसको रन करेंगे, ये आज का मैंने जस्ट वाइंड अप नहीं किया था, तो आपको बताने के लिए कि एज एंड व्हेन टाइम डेवलप होता है तो कैसे कैसे कॉल जनरेट बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर ये देखें आरबीएल बैंक आज का मूवमेंट देखे तो यहाँ पे एक लैकलस्टर पूरा दिन था एंड देन देयर वाज अ सडन बाइंग स्पॉट इन द मूवमेंट, तो उसने यहाँ पे जनरेट कर दिया कि जैसे वो तुम्हारा सुपर ट्रेंड ने नीचे कट किया है, देयर इज अ बाई विच इज जनरेटेड ओवर हियर। तो ये जो क्वेरी है, क्वेरीज बहुत बनाना इजी है, तो एक बार क्वेरीज अगर बन गई आपकी तो रिजल्ट लाइव आपको आएंगे, तो रिजल्ट जैसे लाइव आएंगे यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई विच स्टॉक यू हैव टू ट्रेड। इसके अंदर तो क्या, जैसे कोई भी आप ग्रुप सिलेक्ट करोगे तो वो ग्रुप का पूरा स्टॉक लिस्ट आ जाएगा, तो आइदर फर्स्ट यू मेक योर ऑन सेट ऑफ ग्रुप और फिर उसको आप रन कीजिए। बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप है आप अगर उसको रन करते हो देन यू विल हैव टू, यू शुड हैव एन ईगल आई टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टॉक आप पिक कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू ट्रेड सुपर ट्रेंड। तो इसके अंदर बहुत सारे, हाँ, स्टॉक, कैश स्टॉक्स में भी ये बहुत अच्छा चलता है, ऐसा नहीं है कि एफ एंड ओ बेस्ड स्टॉक्स में चलता है। जैसे अगर कैश स्टॉक्स है तो ये सुबह में ग्रेन्यूल्स करके एक स्टॉक है जो सबको पता है कि बहुत ही लाइमलाइट में ऑफ लेटली बहुत ही उसने उंडा ट्रेड जमा के दिया है सबको, रैली बहुत अच्छी दी है। तो यहाँ पे अगर देखें ये साइडवेज था, मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ, यहाँ पे अर्ली इंडिकेशन दे दिया, ठीक है। अर्ली इंडिकेशन देने के बाद फर्स्ट थिंग है कि आरएसआई ब्रेकआउट दे रहा है, ओके, बट वॉल्यूम्स नहीं है, बराबर है। तो ये आपको ट्रेड ध्यान रखना है कि भाई देयर इज अ बाई सिग्नल व्हिच इज जनरेटेड ओवर हियर, बट एज सून एज द वॉल्यूम काउंट्स इनटू द फैक्टर, तो आप देखिए द मोमेंट इट गिव यू द रैली इज वेरी इंडिड एंड वेरी शार्प एंड वेरी क्रिस्प। जैसे ही वॉल्यूम बिल्ड होना चालू हुआ इट स्टार्टेड, तो अगर आप अर्ली एंट्री भी कर लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस एकदम मिनिमल है, मिनिमल के बाद साइडवेज है, वॉल्यूम नहीं है, द मोमेंट इट स्टार्ट्स वॉल्यूम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम स्टार्ट होने के बाद कहाँ पे आपको अच्छी एग्जिट मिल सकती है। एक ही काम है अपना कि एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस को मॉनिटर करो और एग्जिट कहाँ पे अच्छी मिलती है, बिकॉज वी डोंट हैव टू बी ग्रीडी टू राइड फुल रैली। अपना काम है कि इंट्राडे में 1:1, 1:1.5 जहाँ पे भी मिला कीप एग्जिट, फिर उसी ट्रेंड को जब रिवर्सल होता है आप इंट्राडे में उसको भले शॉर्ट करो, एक ही स्टॉक को आप बाई भी करो सेल भी करो अकॉर्डिंग टू द इंट्राडे पैरामीटर्स व्हेनेवर इट गिव्स यू बाई एंड सेल सिग्नल। अगर आप देखोगे भारतीय एयरटेल अनदर स्टॉक विच वॉज कंटिन्यूसली इन दी डाउन ट्रेंड, तो अगर कल नहीं कर पाए तो आज मॉर्निंग में एक और एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा था। अगर जैसे मैंने आपको बोला स्टॉप्स एंड रिवर्सल के लिए सुपर ट्रेंड यूज होती है, तो कल तो इंट्राडे खत्म हो गया, खैर आज उसने मौका एक बार यहाँ पे दिया कि भाई मैं ट्रेंड के नजदीक आया हूँ, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर आप करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत मिनिमल रहेगा,
and then when market crashed it also went down. तो we can use this way also. और ये stop loss यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस क्या रखोगे? स्टॉप लॉस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो जो प्रीवियस कैंडल्स का जो स्विंग हाईएस्ट स्विंग है आप स्टॉप लॉस उसको रख दीजिए. देन आल्सो इट इज अ मिनिमल स्टॉप लॉस टू योर ट्रेड, राइट? So I think I have taken fair enough time to explain you how super trend indicator is developed and how it works into the daily market momentum. And अगर इसके ऊपर कोई भी queries है तो definitely we can take it ahead. Moderator, we can sum up the things, and if there are any Q&A, we can take up the Q&A session. Sure, why not? So I would request everyone, if you have any question related to this topic, you can write down your questions at question box. Question about Sun Pharma, and he wanted to know your opinion on the Sun Pharma, like इसको कितना होल्ड करना चाहिए? Okay. See, अगर आप सन फार्मा देखोगे तो विल फर्स्ट आइडेंटिफाई कि डेली में उसका ट्रेंड पॉजिटिव है, बराबर है. पॉजिटिव होने के बाद बट देर आर नो मेजर कैंडल्स. डेली में उसने यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट किया है, राइट? तो इसको हम इंट्राडे में कैसे कन्वर्ट करें, राइट? सिंस एंड यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, आपको विप्सॉस मिलेंगे डेली. आपको डेली ट्रेंड पता है कि भाई अभी साइडवेज हो गया है या अपसाइड कैप हो रहा है, ठीक है? तो इंट्राडे में आप क्या फाइंड करोगे कि कहाँ पे मेरे को सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. तो अगर आप 3 दिन लगातार देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड आपको जनरेट हुआ था विच वाज ऑन 31 अगस्त. अगर ये देखोगे सेम कैंडल 31 अगस्त की है, जहाँ पे प्रीवियस डे से उसने ओपन तो ऊपर किया बट फिर पूरे दिन में सेलिंग ऑब्जर्व किया. तो ये कैंडल आपकी फर्स्ट कैंडल ऑफ इंडिकेशन है कि भाई ट्रेंड रिवर्स हो रहा है काफी दिनों के बाद. तो 31 अगस्त को अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में ही उसने मॉर्निंग में यहाँ पे क्लियर कट बता दिया था कि भाई मेरे में वीकनेस है. ऑल्सो यहाँ पे सेमी इंडिकेटर्स अगर आप फॉलो करते हो तो वॉल्यूम्स भी बता रहा है कि भाई जब सेलिंग हो रहा है यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम पे वॉल्यूम्स है, जैसे डाउनसाइड मोमेंटम हो रहा है वॉल्यूम्स आर गेटिंग साइडवेज, इवन आरएसआई गेटिंग ऑन द लोअर साइड, व्हिच इज अ क्लियर इंडिकेशन स्टॉक में सी टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, एंड इट और आइदर इट में गो साइडवेज. तो अगर आप यहाँ भी करते हो तो डेफिनेटली गुड अमाउंट ऑफ डाउनसाइड रैली यू ऑब्जर्व. कहीं पे भी आप इंट्राडे अगर ट्रेडर हो तो डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हो. ये एक इंडिकेशन यहाँ पे है. आप स्विंग्स डाल दीजिए. एग्जांपल अगर मैं इसमें स्विंग डाल देता हूँ तो आपको स्विंग्स पे भी पता चल जाएगा कि भाई वो कहाँ पे एग्जिट देगा स्टॉक. तो स्विंग ट्रेड में तो एग्जिट बहुत लंबा बोल रहा है इसके अंदर, क्योंकि स्विंग इज 1% एंड द टाइम फ्रेम इज 10/3. तो बेस्ट इंडिकेटर है कि आपको आरएसआई जब रिवर्सल देते हैं तो आप एग्जिट कर लीजिए. अब हाउ टू होल्ड लॉन्ग स्टॉक्स, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको ट्रेड जो है आपका उसको होल्ड करना है तो आप उसको हेज कर सकते हो. दैट इज द ओनली वे टू hold your particular directional trade if it is an FNO based stock. Okay, so there is one question. Can we trade in setting 7:1 15 minutes? You can check Nifty on above settings. Okay, why not? We can do that. First I'll convert the chart to Nifty. 7 and 15, right? 7 and 1. 7 and 1, okay. तो ये अगर हम उसको 7 and 1 में मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने एक सेल कॉल जनरेट करा था और फिर पूरा टाइम साइडवेज मोमेंटम है. तो इसके अंदर साइडवेज मोमेंटम है नो डाउट, बट ये साइडवेज मोमेंटम 100-150 पॉइंट का है. तो आप कितना लंबा होल्ड करोगे निफ्टी को, राइट? तो ये आपका जो 7 and 1 सेटिंग जिन्होंने भी पूछा है वो कैसा है कि आप ये सेटिंग्स को डेफिनेटली एज अ स्टॉप लॉस, स्टॉप्स एंड रिवर्सल जैसे मैं बता रहा हूँ, आप एज अ 7 and 1 सेटिंग्स को यूज कर सकते हो. बट अगर आप मेन ट्रेंड ये वाला रखोगे जैसे हमारा एक्चुअल ट्रेंड था, तो आप देखो कि उसके अंदर नो डाउट विप्सॉस एंट्री एग्जिट 2-3 बार मिल जाएगी, पर 2-3 बार एंट्री एग्जिट मिलेगी. उसके अंदर आप देखो कि रिस्क रिवॉर्ड कैसा मिल रहा है. अब आज का ही सेशन ले लो कि पूरा दिन यहाँ पे सेलिंग था, ये हल्का सा उसने बाइंग बताया, एंड देन व्हेन इट एक्चुअली इंडिकेटेड अ सेल, तो ये लेवल पे सेल जनरेट हुआ विच वाज 11,400 का लेवल. उसने नीचे में 100 पॉइंट का रैली दिया. तो इंडेक्स के अंदर 100 पॉइंट अगर इंट्राडे में मिल रहा है
तो आई थिंक इट इज फिनोमिनल। अच्छा, सेम वे अगर 7-1 अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसमें इंडिकेशन आप खुद डिफरेंस मॉनिटर कर सकते हो कि क्या है, स्टिल इट इज साइडवेज, तो आप ट्रेड ही नहीं करोगे। या फिर आप बहुत ही बड़े पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप कर सकते हो, तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए तो काफी सारे अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है अपने पास, राइट। It is a clear difference which you can see 7-1 indicator and 2 and 10 का. So for trader, why we have selected this parameters, we have really back tested the parameters, और ये parameters back test करने के बाद ही मैंने उसको थोड़ा स्मूदन किया है। बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स को हमने स्मूदन इसीलिए किया है कि एंट्री एग्जिट अच्छा मिले, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले, और ट्रेडर्स को ज्यादा यूजफुल हो इन अ बेटर वे। That's it. Okay, so moving on to next question. We will. Okay, what is the RSI setting? Can you please share the logic of the query? Yeah, sure. RSI setting is by default, which is when you input a स्पाइडर में जब हम इनपुट करते हैं स्टडीज में जाके RSI, तो RSI का जो बाय डिफॉल्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, वो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वही हमने रखा है 14/9। वी हैव नॉट चेंज इट और फाइन ट्यून इट, बिकॉज ये जो इंडिकेटर है काफी अच्छा है। यू कैन फाइन ट्यून इट इफ यू वांट मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। सो 14 and 9 goes well with the 210 इंडिकेटर। आपको एंट्री एग्जिट काफी crisp and clear मिलेगी। So we have maintained 14 and you can change the RSI parameter according to your own settings, but whenever you are changing any kind of settings, my request is कि always try to backtest your any settings, then jump onto any trade whenever you do. हाँ, coming on to the query, जो ये है आपकी, definitely मैं query का settings भी बता दूंगा आपको क्या है। Queries में हमने by default when you go to conditions, you just have to click on the conditions, super trend लेना है। अपने जो पैरामीटर्स है by default आएंगे 310, अपने को जो स्मूदन किए हुए पैरामीटर्स 210 इनपुट करनी है। यहाँ पे डेली के बदले इंट्राडे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है 15 मिनट्स। यू कैन सिलेक्ट 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्टेबल जोन। हाउ फार यू आर कंफर्टेबल क्विक ट्रेडिंग 15 मिनट कीजिए। यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग क्विकर एंट्री एग्जिट, यू कैन ट्यून इट टू 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, मैक्सिमम अप टू डेली। सो डेली के बाद भी वीकली मंथली में चलेगा, बट जो ट्रेड डेली वीकली मंथली का आएगा वो बहुत लंबा आएगा। So again, you become semi-positional or a positional trader. So when it comes to intraday for quicker gains, short-term money, short-term gain with short-term stop loss, definitely the time frame the lower, it's good, but don't go below 15 minutes for super trend. और आपने जैसे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, सॉरी, यू कम टू कंडीशन। कंडीशन में सिंपल है, अपवर्ड डाउनवर्ड डाल दीजिए एंड यू सिलेक्ट योर ओन ग्रुप। अगर यहाँ पे मैंने F&O ग्रुप किया है, आपके पास अगर आपका खुद का 15 स्टॉक्स का बास्केट का स्टॉक्स का ग्रुप है, आप उसको रन कीजिए एंड यू विल गेट रिजल्ट लाइक दिस। So one more question. Sure. One client is asking कि अगर स्पॉट के ऊपर मेरा रिजल्ट आता है, बाय एंड सेल के कोई इंडिकेटर आते हैं, सो कैन वी ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट एंड उसका एंट्री एग्जिट हम लोग अगर लाइक ऑप्शंस में ले सके, ऐसे कॉल या पुट में, तो जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो कितने स्पॉट से कितने परसेंट दूर का स्ट्राइक लेना चाहिए? Okay, I got your point. See, if you are a trader and you want to trade options intraday, then you will have to definitely select at the money, right? Out of the money भी select कर सकते हो। out of the money मतलब कि example, अगर मैं मारुति का ही बता देता हूँ, जहाँ पे एक्चुअल ट्रेड जनरेट हुआ था। गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय दी अटेंडी। देखिए, मारुति जब उसने ट्रेड जनरेट करा था कल, राइट, यहाँ पे उनका क्लोजिंग में परसों ट्रेड जनरेट हुआ था, एंड देन यहाँ पे क्लियर कट विजिबिलिटी था कि भाई वो 70-100 के आजू बाजू ट्रेड जनरेट हो रहा है। तो अगर आप इसको ऑप्शंस में देखना चाहो तो मारुति का 7,000 का अगर आप ऑप्शन देखो, तो फर्स्ट थिंग व्हेन इट इज इन स्टार्ट ऑफ एक्सपायरी, प्रीमियम्स विल बी वेरी हाई, तो इट शुड डेफिनेटली शूट, आपके पॉकेट को सूट होना चाहिए। तो अगर सॉरी मैंने स्क्रिप्ट सेटिंग नहीं हटाई, तो यहाँ पे नीचे अगर मारुति का जैसे अगर ट्रेड जनरेट होता है ये दिन पे, तो यहाँ पे हम ट्रेड सपोज एग्जांपल नहीं ले पाते, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम अगर इंट्राडे में लेते तो भी भाव था 70-100 का,
तो मैंने यहाँ पे 7100 की मैं कॉल आपकी प्लेसमेंट के लिए लगा देता हूँ. सुपर ट्रेंड इवन विल वर्क ऑन ऑप्शंस. देखिए ये सेम इट गोज वेरी सिमिलर. जस्ट स्पॉट में यहाँ पे बाई आई, आपको क्लोजिंग पे बाई आई, तो आप क्लोजिंग पे डेफिनेटली आई वुड नॉट एडवाइज टू टेक ऑप्शन. तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग पे ये कैंडल जब जनरेट होती है तो आपका ट्रेंड तो पॉजिटिव है, जो ऑलरेडी सुपर ट्रेंड ने डिपिक्ट कर दिया है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप ये कहीं पे भी मोमेंटम पे आप ऑप्शन बाय कीजिए. अनलेस यू आर नॉट गेटिंग एनी सेल सिग्नल, यू डोंट हैव टू सेल. ठीक है. अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो आपने अगर 2 दिन पहले नहीं देखा, आज सुबह में देखा है, तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था मारुति, जैसे पूरा मार्केट नीचे था, साइडवेज था, मारुति वाज द फर्स्ट टू इंडिकेट यू एट दी एंट्री पॉइंट, ये लेवल पे. तो ये लेवल उसका 7150 था, राइट. 7120 7150. तो आइदर आप 7100 की कॉल बाय कीजिए या 72 की बाय कीजिए. तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद द प्रीमियम, ये आप बाय कर सकते हो. जो 250 रुपए का प्रीमियम है, सेम you have to follow the same steps. previous candle का लो आपका स्टॉप लॉस है and you have to write. तो अगर एट द मनी नहीं करनी है, एक स्ट्राइक आपको पीछे आगे करनी है, यू कैन टेक इट. तो 250 रुपए वाला प्रीमियम 200 रुपए होगा, 50 रुपए का आपको कुशन मिल जाएगा. 7200 इज ऑल्सो नियर टू एट द मनी, क्योंकि 7150 चल रहा है, तो आइदर यू कैन सिलेक्ट 71 और 72. सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए, यू कैन राइड इट. तो यहाँ पे देखिए एग्जिट मिल रहा है, यहाँ पे भी एग्जिट मिल रहा है. बस आपको कैसा है कि अनसर्टन इवेंट्स पे ऑप्शंस में अगर आप बाय कर रहे हो तो मैक्सिमम लॉस इज प्रोटेक्टेड टू द प्रीमियम पेड. बेसिक कंसेप्ट है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हो उनको सबको पता होगा कि भाई स्टॉप लॉस अगर जंप हो गया तो मैक्सिमम लॉस इज डिफाइंड. आपको पता है कि भाई आपका मैक्सिमम लॉस टू द प्रीमियम है. और जैसे कि स्पॉट के अंदर अगर गैप डाउन होता है, मेजर गैप डाउन भी, तो जो गैप डाउन प्राइस होगा वहां से आपको बाई कॉस्ट जो है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेरिंग इसके अंदर तो प्री डिफाइंड है ही आपका. होप आई एम एबल टू surpass the query clearly and very crisply. yes. So one more last question जो actually सब लोग पूछ रहे हैं as a summary, कि आगे as per your opinion बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आपको क्या लगता है कि क्या रेंज में जाएगा, लाइक तेजी होगा, मंदी होगा इन कमिंग फ्यू डेज? See, coming few days अगर आप देखते हो तो there is a clear cut इंडिकेशन ऑन निफ्टी. हम दोनों साथ साइमल्टेनियसली लगा देते. ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है. अगर आप देखोगे तो निफ्टी वाज ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स बैंक निफ्टी, ठीक है, कंटिन्यूसली. अब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जब निफ्टी अगर देखोगे तो ये 200-300 पॉइंट की रेंज में साइडवेज हो गई, ठीक है, तो बैंक निफ्टी स्टार्टेड परफॉर्मिंग. इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं चार्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर क्लियर. यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी हैज ऑलवेज परफॉर्म. ये जो इतने बड़े कैंडल्स स्ट्रिंग है, बट दिस पॉइंट्स आर नॉट लेस देन 500 to 600 पॉइंट्स, सिंगल कैंडल्स. तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म करना चालू हुआ जब निफ्टी यहाँ पे साइडवेज था. सेम टाइम फ्रेम, सेम पीरियड, निफ्टी वाज साइडवेज, बैंक निफ्टी स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग. अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे साइडवेज बता रही है, या देयर इज अ प्रेशर ओवर निफ्टी. बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है. तो ये चीज एक हो सकती है कि जब तक बैंक निफ्टी ये लेवल के नीचे नहीं आती, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, कंपोनेंट्स है, मे ट्राई टू ड्रैग बैंक निफ्टी अपवर्ड्स एंड इवेंचुअली निफ्टी विल हैव टू कम अप. बट ये कंटेंट में अगर बैंक निफ्टी इज लूजिंग द मोमेंटम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो सपोर्टिव इंडिकेटर है आर नेगेटिव और मे बी करेक्टिव मोड पे है, तो सपोर्टिव इंडिकेटर अगर टाइम करेक्शन कर लेता है, प्राइस करेक्शन नहीं करता, मेजर प्राइस करेक्शन, then there should be a bounce. अगर वो इंडिकेटर करेक्टिवनेस के साथ प्राइस करेक्शन करता है इंस्टेड ऑफ टाइम करेक्शन, देन डेफिनेटली दिस विल ब्रीच एंड बोथ इवेंचुअली हैव टू कम डाउन. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब ये मेंटेन करना थोड़ा सा कुशन डिफिकल्ट होगा. इसके साथ आपको ऑप्शन डेटास मर्ज करने पड़ेंगे. सो करंट ऑप्शन डेटास में 11,000 का सपोर्ट है और अपसाइड में 11,500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है एंड इवेंचुअली 12,000 का रेजिस्टेंस है. तो रेजिस्टेंस से अभी तो कोई मतलब नहीं है कि सिंस वी नो दैट ट्रेंड इज गेटिंग साइडवेज, तो सपोर्ट लेवल है जो 11,000 क्रूशियल है. तो अगर करेक्शन आता भी है तो 11,000 11,100 के आजू बाजू ये करेक्शन होल्ड करना चाहिए. अगर होल्ड नहीं करता तो फिर आगे का जैसे डेवलपमेंट होगा, एक बार वी कैन रिवेम द ट्रेड्स और प्रोबेबली स्ट्रेटेजीज एट दैट पॉइंट इन टाइम. Okay, thank you, sir. Okay, sir, any last few words from your side to our traders?
श्योर। फर्स्ट थिंग कि एक हल्का सा छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कंटेंट, ये वीडियो जो प्रोवाइड किया है that are for fully educational purpose, and I have done my own studies, but I will ask viewers definitely to understand the concept, spend time on the indicator, try to back test it out before directly jumping onto trade. कल आज इंडिकेटर बताया, परफॉर्मेंस बताया, सबको अच्छा लगा होगा, नो डाउट, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, ओके, बट वी हैव struggle so much to take this kind of outcome, and I want every viewers to understand this concept very well. कहीं पे भी अगर डाउट हो तो definitely they can connect you and we can take it over, but एक खास I would like to depict one thing कि अच्छा लर्निंग हुआ होगा, अच्छा ट्रेडिंग करेंगे आगे जाके, और I wish everybody a very good luck. एक फेमस गुज्जू सेइंग है, भाव भगवान से। भाव भगवान से का मीनिंग क्या है? आई वुड टेक इट इन हिंदी कि हमने स्टॉक चार्ट्स पे देखा प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन है हम उसको गुजराती में बोलते हैं भाव भगवान से। भाव भगवान से मीनिंग कि अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, भाव दिखा रहा है कि मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने की, आई एम लूजिंग द स्ट्रेंथ, यू डेफिनेटली हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर ट्रेड। अगर आपका ऑनगोइंग ट्रेड है, आप उसको क्लोज कर दो। अगर रॉन्ग ट्रेड ऑलरेडी है, आप उसमें स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर राइट ट्रेड करने के बावजूद भी इफ देयर इज एन अनसर्टन इवेंट, अगर प्राइस आपकी नीचे आ जाती है, प्लीज टेक अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे ये पिक्चर में क्लियर कट बता रहे कि साइडवेज मार्केट में इतने विप्सोस होंगे कि वो मल्टीपल टाइम आपके स्टॉप लॉस कराएंगे। तो रादर देन मल्टीपल स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस करके साइडवेज बैठ जाओ, एंड वो स्टॉप लॉस होने के बाद आप उसको ही रिवेंशन कीजिए कि मेरा स्टॉप लॉस हुआ क्यों, फाइंड आउट एंड फाइन ट्यून द रॉन्ग ट्रेड और द probably wrong catch of a trade, and fine tune it. It will take it to the another part of the session. कैसे कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, डेफिनेटली सीखने के बाद रिस्क विल बी ऑलवेज ऑन द लोअर साइड एंड रिवॉर्ड्स विल बी ऑन द positive or the multiple side. That is the key motto. You should all take it from the current webinar session. कि ट्रेंड है, ट्रेंडिंग मार्केट में काम कीजिए। अगर ट्रेंड साइडवेज होता है, आप शांति से बैठ जाइए। इट इज नॉट कि भाई हर मिनट पे ट्रेड करना है, हर दिन ट्रेड करना है। अपॉर्चुनिटी मिला उस दिन काम कर लो। ये आपको जो टेक्निकल इंडिकेटर है, इट विल हेल्प यू वेल। इट इज वेरी प्रिसाइज इन द ट्रेंडिंग मार्केट। और बिफोर जंपिंग ऑन टू दिस, अ वेरी हम्बल एंड काइंड रिक्वेस्ट की जो इंडिकेटर है उसको पहले आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट कीजिए। जो आपको इंडिकेटर है, जो उसके पैरामीटर्स है, जो आपको बेस्ट सूट करेगा, उसी पे काम कीजिए। नॉट कि भाई किसी ने कुछ बोला है तो उसके ऊपर ही डायरेक्ट हम जंप कर दे। दैट इज द ओनली थिंग विच आई वांट टू कन्वे टू ऑल द व्यूअर्स।